Hello, welcome to FK Super classes. Today we will continue our work energy and power chapter 11 for class 9th. It is a part second. In part first we have discussed about the work, what is work, and we will discuss the scientific conception of work, and we have also seen many examples of not much work done but in spite of working hard. We have seen the physical concept of work done by a constant force, in which case the work is positive, negative and zero. We have discussed in all these things in detail. We have seen the numericals and solve many MCQs questions. In this part second, we will discuss about the energy, forms of energy we will see, and in detail we will see the kinetic energy and potential energy. How energy and work is related to each other, we will go in detail and also prove the work energy theorem. We will also see the law of conservation of energy. Also we will cover in this video about the power, that is the rate of doing work. We will also solve some example of commercial unit of energy. Now what is energy? Energy is capability and ability to do work. हमें वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए. विदाउट एनर्जी हम वर्क नहीं कर पाएंगे. So we supply energy to do some work. In this way work and energy is related to each other. Various forms of energy are there. Mechanical energy. In mechanical energy we deeply discuss about the two forms of mechanical energy, that is potential energy, energy due to the position or the configuration. Kinetic energy, energy due to motion. We will see in detail. Heat energy is there, electric energy, solar energy, nuclear energy, sound energy, chemical energy, light energy, sound energy. Various kinds of energy are there. What is law of conservation of energy? Law of conservation of energy is energy can neither be created nor destroyed. It's only change from one form to another. एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है. द टोटल एनर्जी इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल एक बैटरी है दैट लाइट्स अ बल्ब. सी द एनर्जी चेंज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. द केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी changes into electrical energy, which is then converted into light energy and heat energy. So in this way, through the battery we did not generate the electrical energy or the light energy, only then we have converted the chemical energy into electrical energy, then it is converted into light and heat energy. So energy is only converted from one form to another form. It can neither be created nor destroyed. So the total energy in the universe is always remain constant. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल. हमने वर्क में भी देखा कि ऐसा यूनिट वर्क का जूल है. एंड सीजीएस यूनिट इज अर्ग. 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग. पार्ट फर्स्ट में हमने इसको डिस्कस किया, इस रिलेशन को हमने प्रूव किया है. Now what is mechanical energy? Mechanical energy is the energy that is possessed by an object due to its motion or due to its position or configuration. Mechanical energy वो energy है जो ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से या उसके पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने की वजह से आया है. मैकेनिकल एनर्जी कैन बी आइदर काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ मोशन. अगर बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा. और पोटेंशियल एनर्जी
अगर बॉडी का पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। Objects have mechanical energy if they are in motion or if they are at some position relative to a zero potential energy position. Potential energy के example हो गए a brick held at a vertical position above the ground zero height position। एक brick है उसको हमने ऊपर उठा लिया तो उसके अंदर जो है एक एनर्जी स्टोर हो गई, that is the potential energy. Kinetic energy example, a moving car possesses mechanical energy due to its motion। एक moving car है उसके अंदर kinetic energy है because of its motion, because it is moving। और एक अच्छा एग्जाम्पल है जिसमें आपको potential और kinetic दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, that is a moving baseball possesses mechanical energy due to both its high speed, that is the kinetic energy is there because the ball is in motion, and its vertical position की वजह से इसके अंदर जो है potential energy है। So हमने समझा kinetic energy जो है energy of an object due to its motion। मैथमेटिकली हम kinetic energy को एक्सप्रेस करते हैं half of mv square, where m is the mass and v is the velocity। पोटेंशियल एनर्जी जो है एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन है। मैथमेटिकली हम पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं mgh। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं स्प्रिंग। स्प्रिंग को हमने टाई कर दिया वॉल से, अगर आपने उसको कंप्रेस किया, एक वर्क किया आपने, वो वर्क उसमें स्टोर हो गया एज अ पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन से आपने एलोंगेट कर दिया स्प्रिंग को, आपने फिर एलोंगेट करने के लिए वर्क किया, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल बो एंड एरो है। ए ड्रॉन बो पॉजेज मैकेनिकल एनर्जी ड्यू टू इट्स स्ट्रेच्ड पोजीशन। कुछ क्वेश्चन हम काइनेटिक एनर्जी पे देखते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? The energy possessed by an object by virtue of its motion is known as the kinetic energy of the object. Write the expression for the kinetic energy of an object. What will be the expression for the kinetic energy? अभी हमने पढ़ा kinetic energy of an object half of mv square, where m is the mass of the object and v is the speed of the object. एक क्वेश्चन देखते हैं। The kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 meter per second is 25 joule। एक बॉडी है जिसका काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? And what will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? अभी हमने एक्सप्रेशन में देखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर हम वेलोसिटी डबल करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट में है, अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। और सेकेंड पार्ट में जब हम वेलोसिटी को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी स्क्वायर, सो अगर हमने 3 टाइम्स हमने इंक्रीज किया वेलोसिटी तो 3 का स्क्वायर 9, इट मींस काइनेटिक एनर्जी will increase by 9 times. In this way we can solve by easily seeing the expression of the kinetic energy. So kinetic energy जो क्वेश्चन में दिया गया 25 जूल है। फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी डबल है तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, इट मींस 100 जूल हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट में वेलोसिटी 3 टाइम्स बढ़ रहा है, इट मींस काइनेटिक एनर्जी जो है 9 टाइम्स बढ़ेंगे, हैंस टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा आपका वो 25 इंटू 9 दैट इज 225 जूल। पावर, नाउ व्हाट इज पावर? Power, it is work done per unit
टाइम। सो कितने टाइम में ये वर्क हुआ है ये आपको पावर बताता है। इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैथमेटिकली वी एक्सप्रेस पावर एज वर्क अपॉन टाइम। सो यूनिट ऑफ पावर विल बी वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकेंड। सो यूनिट ऑफ वर्क इज हियर इट विल बी वर्क। सो यूनिट ऑफ पावर इज joule per second. Joule per second is also called watt. So what is 1 watt? When 1 joule of work is done for 1 second, then power associated is 1 watt. Commercial unit of power is kilowatt and HP, horsepower. So relation हमें ध्यान रखना है, 1 kilowatt is equal to 1000 watt and 1 HP, 1 horsepower is equal to 746 watt. Commercially we use this unit kilowatt and HP. In industries, motor specification of power are given in kilowatt and HP. Power is a scalar quantity. Since work is a scalar quantity, time is a scalar, hence power is work upon time, so it is also a scalar quantity. एक और एक्सप्रेशन जो हमें न्यूमेरिकल में सपोर्ट करेगा वो है, जैसे हमने देखा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम एक्सप्रेस करते हैं F इंटू एस। सो इन प्लेस ऑफ वर्क वी राइट एफ एस बाई टी and we also know S by T, displacement upon time is nothing but velocity. So power is equal to FV. ये ध्यान रखिएगा, बहुत से छोटे छोटे न्यूमेरिकल में इसका यूज हो जाएगा आपको। So power is equal to FV. Now we see some question on power. What is power? Power is defined as the rate of doing work, जो हमने देखा। Next question, define 1 watt of power or define SI unit of power. Power of an agent is said to be 1 watt if it does 1 joule work in 1 second. एक क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल। A lamp consume 1000 joule of electrical energy in 10 second. What is its power? एक लैंप है जो 1000 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो 10 सेकंड में यूज कर रहा है, तो पावर क्या होगा? अभी हमने देखा पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। Work and energy is related to each other, so we can write power is equal to energy upon time. The energy consumed is 1000 joule given, the 1000 joule divided by time is 10 second, so it will be 100 joule per second, and joule per second is nothing but watt, so that is 100 watt. Now question, define average power. What is average power? The average power is defined as the ratio of total work done by an agent to the total time taken. So average power is total work divided by total time. Electrical meter, जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल मीटर है वो आपको रीडिंग जो है किलोवाट आवर में देता है। इलेक्ट्रिकल मीटर रीडिंग कम्स इन किलोवाट आवर। हाउ, कैसे किलोवाट आवर में आता है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, अभी हमने पढ़ा। वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। फाइन, वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, सो हम इन प्लेस ऑफ वर्क लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट वाट, कमर्शियल यूनिट किलोवाट होती है। टाइम कमर्शियली एच लिया, तो इस तरीके से एनर्जी की यूनिट हो जाती है किलोवाट आवर। सो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल मीटर की जो रीडिंग आती है वो किलोवाट आवर में आती है, और 1 किलोवाट आवर जो होती है वो 1 यूनिट के बराबर है। हाउ किलोवाट आवर इज रिलेटेड टू जूल? बिकॉज जनरली हम एनर्जी का जो यूनिट लेते हैं जूल लेते हैं। किलोवाट आवर को हम जूल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 वाट हो गया, इनटू आवर को सेकंड में कन्वर्ट किया तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड। वाट की जगह पे हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका 1000 जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड। उसके बाद हम सेकंड सेकंड कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। इन दिस वे किलोवाट आवर इज रिलेटेड टू जूल। ये आपको ध्यान रखना, या तो डायरेक्ट
क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या रिलेशन पूछा जा सकता है कि कैसे 1 किलोवाट आवर जो है वो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर है। वर्क एनर्जी थ्योरम। द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जो भी एनर्जी हमने ट्रांसफर किया बॉडी में वो आपको वर्क में वो अमाउंट आपको दिखेगा। वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू हाइट h। एक बॉडी को हमने जो है ग्राउंड से हाइट h पे लेकर के गए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हियर डिस्प्लेसमेंट इज हाइट h, सो वर्क इज इक्वल टू F इनटू h। What is F? Force. Force is equal to mass into acceleration. Here acceleration is acceleration due to gravity. So force is equal to mg. Hence work is equal to mgh. mgh is potential energy. अभी हमने पढ़ा potential energy expression भी हमने देखा था mgh. So work is, जो भी हमने वर्क किया इस बॉडी को हाइट h पे ले जाने में, that work is stored in the form of energy in the body. In this way work is related to energy. Now proof work energy theorem. According to this theorem, the net work done on a body is equal to the change in kinetic energy of the body. This is known as work energy theorem. हमने एक बॉडी है जो मूव कर रही है u वेलोसिटी से, उस पर कांस्टेंट फोर्स F अप्लाई किया which result in constant acceleration, and this body covers a distance of s and velocity changes to v c. अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के स्टेटमेंट में पढ़ा, the net work done on a body is equal to change in kinetic energy. So we prove here work done is equal to change in kinetic energy. तो work is equal to Fs हमने पढ़ा है, force is equal to mass into acceleration. So in place of F we put ma into s. मोशन ऑफ इक्वेशन जो पढ़ा था उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ से s की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू s. तो इन प्लेस ऑफ s हम पुट कर देंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a. जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर. सो वर्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज नथिंग बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज फाइनली इस बॉडी ने वेलोसिटी v गेन किया. सो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियली इसकी स्पीड u थी, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर को हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख देंगे. सो वर्क इज इक्वल टू के एफ माइनस ki. Hence work done is equal to change in kinetic energy. So हमने देखा work is equal to change in kinetic energy. अब इस थ्योरम को यूज करके हम जो है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे और पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे. अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक एनर्जी का उसको हम प्रूफ करेंगे. अभी हम वर्क एनर्जी थ्योरम में देखें कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस हमने पढ़ा है. फोर्स की जगह पे हमने मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस. एस की जगह पे हमने यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन से. सो हियर हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर वर्क आ गया आपका. अगर u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर सिंस u इज 0. सो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहां से हमें काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेशन प्रूफ हो जा रहा है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर. अब हम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच ये प्रूफ करेंगे. वर्क इज इक्वल टू एफ एस हमने पढ़ा. नाउ वर्क इज इक्वल टू एफ की जगह पे एम जी डाल दी. सिंस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर बॉडी जो है वर्टिकल मोशन में तो एक्सेलरेशन की जगह पे हम जी डाल देंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वर्क इज इक्वल टू एम जी एच. तो वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियली बॉडी ग्राउंड पे था, दैट इज द जीरो पोटेंशियल। अब बॉडी जो है h हाइट पे चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइनली mgh हो गई। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये प्रूफ हो गया। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने इनिशियल में पढ़ा था, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। अभी हम देखेंगे यहां पर मैथमेटिकली हाउ इट इज कंजर्व्ड। एक बॉडी है ए पे, उसको हमने ड्रॉप किया सी। अब हम ये चेक करेंगे कि बॉडी जब ए पे है तब उसकी टोटल एनर्जी क्या है, जब बी पे, जब ग्राउंड पे पहुंचेगी तब उसकी टोटल एनर्जी क्या है, और जब इन ए और बी के बीच में किसी पोजीशन सी पे है तब इसका टोटल एनर्जी क्या है। अगर इन तीनों पोजीशन पे टोटल एनर्जी सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। सो हमारा यहाँ बेसिक ये पॉइंट होगा कि हमें इस तीनों पोजीशन पे ए, बी और सी, इन तीनों पोजीशन पे हमें ये प्रूफ करनी है कि एनर्जी इज सेम। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया TA इज इक्वल टू TB इज इक्वल टू TC, देन law of conservation of energy is proved. Let the mass be m and acceleration due to gravity is g. अब हम A पोजीशन की बात करेंगे। as at point A TA is equal to A पॉइंट पे हमारे पास क्या एनर्जी हो सकती है, या तो पोटेंशियल एनर्जी होगी या फिर काइनेटिक एनर्जी होगी, दो एनर्जी होगी। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास ड्यू टू हाइट, ड्यू टू इट्स पोजीशन, h हाइट पे है तो mgh पोटेंशियल एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी वहां से हमने ड्रॉप किया है तो उस चूंकि बॉडी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है सो स्पीड इज जीरो। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा आपका जीरो, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। सो एट पॉइंट ए द टोटल एनर्जी जो बॉडी में वो mgh है। नाउ वी विल डिस्कस द टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। सी पॉइंट बी पे क्या हो सकता है कि बी पर भी जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा बी पे, यहां पे इसको करेक्ट कर लें। टोटल एनर्जी एट बी पोटेंशियल एनर्जी होगा और आपका काइनेटिक एनर्जी होगा बी पे, ये होगा आपका पीबी एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगा बी पे। फाइन। तो बी पे बॉडी ग्राउंड पे वापस आ गई जीरो पोटेंशियल पे, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगी जीरो आपकी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पे, बिकॉज फ्रॉम कमिंग फ्रॉम हाइट h व्हेन इट रिटर्न टू ग्राउंड इट एक्वायर सम वेलोसिटी। सो वहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज हाफ ऑफ mv स्क्वायर। फाइन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। एक्सेलरेशन की जगह पे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज कर ली, s की जगह पे हमने h यूज कर ली, क्योंकि बॉडी ट्रेवल फ्रॉम a टू b दैट इज द हाइट h। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इनिशियली बॉडी को ड्रॉप किया गया है तो u की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब जो पॉइंट बी पे जो टोटल एनर्जी होगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, यहाँ पे v स्क्वायर को 2gh से रिप्लेस कर देंगे। फाइन। तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ m इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज अगेन इक्वल टू mgh। सो अभी हमने देखा TA पे भी एट पॉइंट ए टोटल एनर्जी इज mgh, एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी इज mgh। नाउ अब हम ये देखते हैं C पे क्या कंडीशन है। C टोटल एनर्जी एट C क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट C प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C, यही होगा। अब C जो है वो A से x डिस्टेंस पे है और टोटल डिस्टेंस A और B के ग्राउंड्स के बीच में h है, तो B और C के बीच में क्या हो जाएगा, अगर A और C के बीच में x डिस्टेंस है तो B और C के बीच में h माइनस x डिस्टेंस होगा। फाइन। सो
पोटेंशियल एनर्जी एट सी क्या हो जाएगा, ग्राउंड से बी पॉइंट से कितने हाइट पर है वो, तो एम जी एच, एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एच माइनस एक्स, जो सी पॉइंट है वो ग्राउंड से एच माइनस एक्स डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका एम जी इंटू एच माइनस एक्स, फाइन। और कैनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी क्या होगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स, फाइन। u ड्रॉप किया गया तो u जीरो, ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वेलोसिटी है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाले जो इक्वेशन ऑफ मोशन से s जो डिस्टेंस होता है वो आपके इनिशियल और उस पोजीशन पे जाने के बाद जो डिस्टेंस है वो होता है। अभी हमने a और c के बीच में कवर किया है, इसलिए जो हमारा s है ना वो x होगा। तो हम जो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर आया है, एम वी स्क्वायर की जगह पे 2gx पुट करेंगे, फाइन। सो टोटल एनर्जी एट सी हो जाएगा आपका, इसको एम जी इंटू एच माइनस एक्स प्लस हाफ ऑफ एम इंटू 2gx, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस ये 2 और 2 कैंसिल, तो एम जी एक्स प्लस माइनस एम जी एक्स जो है आपका कट जाएगा इस तरीके से, प्लस एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स कट जाएगा इस तरीके से, आपका टी सी आ गया, टोटल एनर्जी एट सी इज एम जी एच। हमने देखा टोटल एनर्जी एट ए इज एम जी एच, टोटल एनर्जी एट बी इज एम जी एच, टोटल एनर्जी एट सी इज एम जी एच। इस तरीके से टी ए इज इक्वल टू टी बी इज इक्वल टू टी सी, हेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी proved. Here energy neither created nor destroyed, it only changed from one form of energy to another form. Height A पे का full energy is potential energy, जब वो B पे ground पे वापस आया full energy is transferred to kinetic energy, no potential energy is there. जब in between A और B के किसी point, बीच में किसी point C पे था तो वहां पे इसका potential energy भी था, kinetic energy भी था। इस तरीके से हमने प्रूव किया कि तीनों पॉइंट पे टोटल एनर्जी इज कंजर्व। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन एट सर्टेन एंगल टू द ग्राउंड मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ एंड फॉल्स बैक टू द ग्राउंड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको किसी एंगल पे जो है थ्रो किया गया है फ्रॉम ग्राउंड, वो कर्व्ड पाथ में फॉलो करके वापस फॉल कर रहा है ग्राउंड पे। Find the initial and the final point of the path of the object lie on the same horizontal line. Initial position and final position जो है एक ही horizontal line पर है। अगर ग्राउंड से उस बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है, फिर वापस वो बॉडी जो है वापस ग्राउंड पे आ जा रही है। ओके, देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? क्या होगा वर्क डन? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो S 0 हो गया, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। फाइन। सी द सॉल्यूशन। वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट इज mgh. फाइन। हियर h is difference in height of the initial and the final position of the object. Fine. Since initial and final position of the object are at the same level, so h is equal to 0. Hence work done is equal to 0. Fine. Next question. A battery lights a bulb. Describe the energy change involved in the process. The chemical energy of the battery changes into electrical energy, which is then converted into light energy and heat energy. Fine. Next question. Certain force acting on a 20 kilogram mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. कुछ फोर्स है जो 20 kg मास पे लग रहा है और इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी है 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड पे, वेलोसिटी रिड्यूस कर दिया गया है उस फोर्स की वजह से। तो कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो गया? हमने पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर लिख सकते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 2 मीटर पर सेकंड हुआ। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका 5 मीटर पर सेकंड है, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 210 जूल। यहाँ पे v जो है आपका फाइनल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड एंड u इज 5 मीटर पर सेकंड। ये ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड फ्रॉम इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड टू फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A certain household has consumed
250 यूनिट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक घर जो है 250 यूनिट ऑफ एनर्जी एक महीने में यूज़ कर रहा है। हाउ मच एनर्जी इज़ दिस इन जूल? 250 यूनिट एनर्जी यूज़ कर रहा है तो उसको जूल में कन्वर्ट करना आपको। एनर्जी 250 यूनिट है, इसका मतलब है 250 किलोवाट आवर है, चूँकि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1 यूनिट। फाइन। अब हम 250 किलोवाट आवर को हम वाट और सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 250 इंटू किलोवाट को 1000 वाट लिख सकते हैं, ठीक है, और आवर को हम 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकंड लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा 250 इंटू 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। और हम जानते हैं कि वाट इज नथिंग बट जूल पर सेकंड, हम 1000 वाट की जगह पे जूल पर सेकंड कर दिया इंटू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया और ये आप सोल्व करोगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। नेक्स्ट, An object of mass 40 किलोग्राम is raised to a height of 5 मीटर above the ground। एक बॉडी है जिसका मास 40 किलोग्राम है, उसको 5 मीटर ग्राउंड से ऊपर ले जाया गया। h is 5 मीटर। फाइन। What is its potential energy? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgh। मास दिया गया है, h आपको 5 मीटर पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अगर ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया गया, ठीक है, देन फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। जब वो नीचे हाफ वे डाउन आ जाएगा तो कितना काइनेटिक एनर्जी होगा? तो काइनेटिक एनर्जी व्हेन हाफ वे डाउन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हाफ वे डाउन। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ? सी, क्या होगा ये आपका? The force of gravity acting on a satellite moves the satellite in a circular path. Since the force of gravity acts at right angle to the displacement of the satellite, so work done will be zero. Because जो force लग रहा है और जो displacement हो रहा है, force आपका रेडियल है, displacement आपका टेंजेंशियल है, इसमें एंगल 90 डिग्री। तो हमने देखा था वर्क इज इक्वल टू एफ cos 90 से cos थीटा में अगर थीटा 90 है तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा फिर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।